Hello, it's audible now. Good evening, students. Now, today we are to discuss about the topic for grade 10th. Might be you know the name of the topics here already written. The name of the topic, light. Anyone knows what is the light? Now we are struggling now. क्या लाइट क्या है बता सकते हैं कोई? What is the light? हमारा लाइट तो लग रही नहीं. लाइट लग रहा है कि नहीं? क्या पूछ रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? स्पीक अप. गलत बोलो लेकिन बोलो. क्या है लाइट बेटा, बोलो. वेरी गुड. इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज विजिबल. Two options are there. Is light is visible? No, but makes things are. लाइट दिखता नहीं है आपको, बट लाइट की वजह से सभी चीज आपको दिखते हैं. इज इट करेक्ट? Light is invisible but makes things are visible. It is a form of energy. So different kinds of energies are there, and we have to discuss in this topic so few properties of the light. From them, first one is a reflection of light. What is reflection? Very good. Bouncing back from the same medium. एक ही मीडियम से बॉल फेंकते हैं आप, मार दिए तो फिर बॉल कह जाएगा बैक. इज नोन एज रिफ्लेक्शन. कैरम खेलते स्ट्राइकर रिबाउंड, दैट इज नोन एज बाउंसिंग बैक. द सेम वे light is also falling on the particular surface. It strikes and again it's come back with the same speed. Same speed में आ रहा है. यहाँ पे स्पीड कम हो रही है क्या उसकी? नहीं है. That conditions, that properties are known as the reflections. Refractions we'll discuss after the refractions. Refractions are the same. When the light passing from the one medium to other medium, it changes its path. That will also be discussed one by one. First, we'll discuss about that refraction of the lights and what you have to learn in this topic. We'll discuss here basicity of lights. For what? For vision, to sense the object, to know the objects. Okay, light is essential. Without lights, we can't see any objects. That is our need. That is our basicities. The luminous and non-luminous object. What is mean the luminous objects? Those can emit their own light. That is known as the, like sun. Sun is a, it emits their own lights. खुद का लाइट आता है उसे, है ना? खुद लाइट इमिट करता है. वो क्या है तुम्हारा luminous. Non-luminous objects. मून, सन का लाइट उस पर आता है तो फिर बाद में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है अपने को. मून इस खुद लाइट इमिट नहीं करता है. दैट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. दोज ऑब्जेक्ट्स आर इमिटिंग लाइट बाय ओन इज नोन एज द luminous one, and non-luminous is opposite of that. The human beings are luminous or non-luminous? Non-luminous. Very good. The burning candle, luminous object. Very good. These are the now mediums in optics. Optics means again the study of lights. The mediums, which mediums are there? When the light is propagating from the one medium to the other mediums. Now we are generally discussing about that. Air medium, the rare mediums. The basically lights passing from the three mediums are there. Like we are seeing the transparent medium. Transparent का मतलब क्या होता है? Like your spectacle, it is a transparent. Correct? Translucent क्या होता है? Partial light दिखता है आपको. Opaque, we can't see. है ना? ये दीवार को उधर दिख रहा है आपको कुछ? इसका मतलब दीवार क्या है आपकी? ये opaque, है ना? The three mediums also we have to discuss in this topic, and the laws of reflection of lights, same, the like bouncing backs. The same topics again we have to discuss one by one now. I just given the types of reflections and laws of reflections. The types of reflection, basically two types of reflections are there. How many? Basically, which are two? Very good. Regular reflections and irregular. What is the alternative name of irregular? Diffuse reflections. That one also we have to discuss one by one now. Let me proceed for the basicity of light here given. The light, the source of lights. Here, some obstacles are there. The barriers, we are unable to see the light here. Okay.
here we are able to see the actually the light is form of the waves. Now before for your class we are seeing the light propagation of light. Propagation का मतलब क्या है? लाइट किस तरह से आगे जाता है. For your syllabus the light is propagating in the form of the straight line. Okay, actually when you are going in higher class it is dual nature. Light is propagating from the waves also, but for simplicity the given for the optical study or ray optics we are just discussing in the class. Light is traveling in a straight line. That one we have to discuss here. Here the given some obstacles, the lights forms of waves, they are there. There are some corpuscles we are seeing, some tiny particles are there. That one also we have to discuss here. Properties of lights, what I told, light travels, how it light is travel, लाइट कैसे जाता है? प्रोपोगेट का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन जाता है ना. तो हर एक का एक मेंटेलिटी अलग है, स्वप्न का बोलने का तरीका अलग है. तो यहाँ पे सॉरी, न्यूटन्स, according to Newton's told light is a sorry, the corpuscles are there, small particles are there, they are emitting the lights according to Newton's. The Huygens told the light is form of the waves. Actually the how it is transverse waves. You know the type of waves, पता है दो waves कौन से होते हैं? ट्रांसवर्स एंड. तो लाइट वेव्स हो सकता है क्या? तो लाइट कैसा है? वेव्स है, बट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल. Light is traveling in the form of that kind of waves. This is known as the transversal waves. सर ऐसा है तो फिर लाइट हमको ऐसा नहीं लगता, हमको स्कूल में पढ़े हमने बचपन में, लाइट इज ट्रेवलिंग ना स्ट्रेट लाइन. तो आप ऐसा बता रहे हो, सही है? किसका सही है? किताबों का सही है क्या मेरा सही है, या दोनों का सही है? दोनों का सही. चलो आई एक्सेप्टेड. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज दैट वेव इज वेरी स्मॉल, दैट इज नोन एज द वेवलेंथ. दैट इज if suppose I am drawing such kind of line, that wavelength is very small, that about the the visible spectrum is there. Actually the all lights we are unable to see, the human beings are unable to see the all kinds of the lights. We have the certain limitations. सभी लाइट दिखता है अपने को नहीं, अपने भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं. जो लाइट अपन देख सकते हैं उसे भी क्या बोलते हैं अपन? विजिबल लाइट. और जो नहीं देख सकते उसे बोलते हैं अपन इनविजिबल. ओके, कौन सा लाइट देख सकते हैं अपन? दोज हैविंग द वेवलेंथ इनटू 4 into 10 raised to minus 7 to 7 into 10 raised to minus 7 मीटर. ये लाइट अपन देख सकते हैं, that is visible. And after that those light we are unable to see, that is like some spectrum is there, visible spectrum, like you are seeing the red to violet, that spectrum is there. And before the red, the infrared we are unable to see, but the light is there. While you are operating the remote in our TV remotes, that ray is known as the infrared. TV ऑपरेट होती है ना आपकी रिमोट दबाने से, तो वो रे कौन से? इंफ्रारेड. बट वी कांट सी, दिख सकता है आपको? नहीं. वैसे ही अल्ट्रा वॉयलेट, वॉयलेट के बाद में क्या लाइट आपको दिखता है क्या? नहीं. तो व्हाट इज आवर रेंज? वी आर एबल टू सी द लाइट्स ओनली इन द रेंज द रेड टू वॉयलेट. ओके, उतने ही कलर आपने को लाइट के दिखेंगे. Now here the objects in optics, here few objects are given, might be you know very well, and you can classify from here which kind of the objects are there, which are the luminous one, which are the non-luminous. Here given I think okay, you can differentiate which right side is which one luminous or left side is luminous one. Here given the sun gives the own light, that fire gives the own light, the torch are giving the own light, the glowing bulb also emitting their own light, the firefly का मतलब क्या है? जुगनू है ना, जो कीड़ा होता है उसमें लाइट होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? emitting their own light. The stars also they are emitting their own light. Means this kind of all the objects are known as the luminous objects. क्या कहोगे उसे? Luminous. And that kind of the objects here, earth, it is not emitting their own light. The umbrella is not emitting their own light. It may be reflect but not emitting their own light. The कार की शाइनिंग होती है, लस्टर होता है, बट लाइट इमिट करती है क्या? नहीं. The ball, the glass, cap, they are not emitting their own light. They are known as the non-luminous
ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ल्यूमिनस का मतलब क्या है? ल्यूमिनस का मतलब क्या है? Yes, very good. Those particles, those emitting their own lights are known as the luminous objects, and those are unable to emit their own light is known as the non-luminous objects. The moon is luminous or non-luminous? मून पूर्णिमे का मून होता है, पूनम होता है ना, तो पूनम के मून में क्या दिखता है? लाइट दिखता है आपको? इमिट करता है वो? इट विल बी रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सन। आपको दिखता है, उजाला दिखता है, लाइट दिखता है, बट इसका खुद का लाइट नहीं है वो। दैट्स व्हाई मून इज अ non-luminous objects. Okay, here we can differentiate the luminous objects and non-luminous objects. We'll proceed now. Here given the same, the transparent, like I told, like your spectacles, the glass, the transparent glass, we can see the lights as it is behind that medium. It's known as the transparent surface, transparent medium. Here the translucent, and a translucent objects, like any paper, if you are using the oil, just you are spraying the oil on the paper, we can find the paper is now translucent. We are able to see partially image. We cannot see clear, but we can identify the partial image. पूरा दिखता नहीं आपको, एज इट इज नहीं दिखता है, पर थोड़ा बहुत सेंस होता है आपको, कुछ तो कुछ है वहां पर। उसे क्या कहोगे आप? ट्रांसलूसेंट। ऑपेक में तो दिखता ही नहीं, ब्लॉक हो गया पूरा लाइट। जैसे कि सपोज यहां पर लेट मी इमेजिन दिस आर द लाइट, थ्री रेज आर द लाइट्स, एंड हियर सपोज द मीडियम, यहाँ पे एक मीडियम है सपोज, तो यहाँ पे मीडियम में से तीन के तीन रेज पूरे निकल जा रहे हैं। ये तीन रेज हैं, तो यहाँ पे तीन के तीन रेज निकल जा रहे हैं, तो इसे क्या कहोगे आप? ट्रांसपेरेंट। हियर द सेम वे, इफ सपोज द सेम थ्री रेज आर कमिंग, बट फ्रॉम हियर द वन और टू रेज आर ओनली कमिंग, समवेयर इज ब्लॉकिंग। पूरे रेज आ रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं आ रहे, कुछ रेज क्या हो रहे हैं आपके? ब्लॉक हो रहे हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसलूसेंट। वी आर अनेबल टू फाइंड द लाइट्स 100%। कुछ तो लाइट वहां पे ब्लॉक हो रहा है, करेक्ट है? और यहाँ पे सपोज यहाँ पे लाइट आ रहा है, और यहाँ पे लाइट आपका आने के बाद में भी जा रहा ही नहीं, दैट इज कंप्लीटली ब्लॉक। इट इज नोन एज द ओपेक। इज इट क्लियर? समझ में आ गया है क्या क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? All light passes from the one medium to the another medium. Okay. The translucent, partially transfer, पूरा नहीं जा रहा है, थोड़ा जा रहा है, थोड़ा सा रुक जा रहा है, थोड़ा सा एब्सॉर्ब हो रहा है, कुछ दूसरी तरफ जा रहा है, पर पूरा लाइट नहीं जा रहा है। और ऑपेक यानी पूरा कंप्लीटली तुम्हारी लाइट को क्या कर दिया उसने? ब्लॉक कर दिया। इस तरह से मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑपेक। इज इट क्लियर नाउ अबाउट द मीडियम्स? विच नाउ विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। हियर द रे नेचर ऑफ लाइट्स। अब मैंने बताया आपको लाइट का नेचर क्या है, आपको वेव नेचर है, फिर रे नेचर क्या देखना है अपने को, क्योंकि बार बार क्या है फिगर्स निकालते समय, डायग्राम निकालते समय वेव्स नेचर निकालना बहुत मुश्किल होगा आपको। दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग एज लाइट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन। आप कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं आप? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज लाइक अ रे। रे यानी कैसा होता है? रे, यू नो मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, it is extending from the line. The line is extending from the here point source. From points the rays is line is extending. Is known as the ray. Sun rays. सूरज की किरणें बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? किरण। Sun rays. तो ये क्या लाइट? We are studying the lights in the those the nature of the light is in the form of the rays. That is known as the ray optics. Given here. And the wave nature of the lights, wave I told, the according to Huygens, he told the light nature having the how it will be, it is form of the waves. The partial nature of the lights means they are having the both one, the ray as well as the wave nature, that because light is electromagnetic waves, that having the both the properties. And dual nature of the light, that is quantum also, the both the combination of the ray as well as the wave nature, the dual natures also we have to discuss. Here the given the question first, who will give the answer? We'll just find the question. A small source of light casts a sharp shadows of an opaque object. Shows what he shows. Anyone can give the answer? Here options are given.
अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो, शैडो आ रहा है सोर्स है, सपोज लाइट बैटरी है, सपोज यहाँ पर से है ना, या लाइट भी बैटरी, तो क्या आ रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, तो इसका क्या हो रहा है आपको यहाँ पर शैडो आ रहा है। शैडो किसका आता है, ट्रांसपेरेंट का आता है क्या ओपेक का आता है, या किसका आता है शैडो, ओपेक का आता है, वेरी गुड। ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट शोज, तो इसका मतलब क्या है, लाइट कैसे जा रहा है तुम्हारे, इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका रे नेचर ऑफ द लाइट, समझ में आ गया, रे नेचर, लाइट सीधा जाता है तो उसका शैडो गिरेगा, है ना। शेप आपका ऑब्जेक्ट का शेप रेक्टेंगल है, शैडो भी कैसी गिरेगी आपकी, रेक्टेंगल ही गिरेगी। इट्स इंडिकेट दैट द लाइट ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कैसे जा रहा है आपका रे के हिसाब से जा रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द बीम इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ द रे। बीम का मतलब क्या होता है, एक रे और ग्रुप ऑफ द रे इज नोन एज द बीम। यहां पे क्या है, रे एंड बीम, रे यानी सिंगल लाइन, बीम का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ द रेज इज नोन एज द बीम। हियर द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट्स, सो बीम क्या जा रहे, पैरेलल जा रहे हैं, यहां पे डाइवर्जिंग, ये एक पॉइंट से रेज आपके स्प्रेड हो गए, फैल जा रहे हैं, उसी क्या बनेगा डाइवर्जन, है ना, डाइवर्ट हो रहे हैं आप, आपको बोलते हैं बहुत बार घर पर है ना, बी फोकस, डोंट बी डाइवर्ट, डाइवर्ट यानी स्कैटर मत बोलो, फैलो मत, एक ही तरफ फोकस करो। सेम द रेज आर स्कैटरिंग, दे आर मूविंग apart from each other is known as the diversion, and the same way opposite of that the converging, the all the lights are coming towards the one point is known as the converging point। converge का मतलब क्या है, मिलना, diverge का मतलब बिखरना, पैरेलल का मतलब सीधे सीधे है ना। तो यहाँ पे रे और बीम में कोई डाउट्स, इज एनी डाउट इन रे एंड बीम, व्हाट इज द बीम, ग्रुप ऑफ रे इज नोन एज द बीम, वेरी गुड। The parallel beam of lights, that is all the rays are parallel to each others, is known as the parallel beam. Here divergent beam of lights means from the one point the rays are going to separated, the rays are going to is known as the divergent। इसको क्या कहोगे आप, डाइवर्ज का, डाइवर्ज का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट से बिखर जा रहे हैं, बिखरना है, इसका मतलब क्या है डाइवर्ज होना, गॉट इट। एंड द कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कॉन्वर्ज का मतलब क्या हो रहा है, बी कलेक्टेड, बी टुगेदर, बी ज्वाइन फ्रॉम, सब तरफ से बिखरे बिखरे होके, जैसे कि आप घर में बिखरे बिखरे थे, क्लास में आके सब कॉन्वर्ज हो गए, क्लास में मिल गए ना, ये क्या हुआ कॉन्वर्ज। अभी यहां से जाओगे फिर बिखर जाओगे, एक का घर उधर, एक का घर इधर, एक का घर इधर, वो क्या हो गया डाइवर्ज। एक पॉइंट पे आना है, उसे क्या कहोगे आप कॉन्वर्ज, एक पॉइंट से बिखरना, उसे क्या कहोगे diverge। Is it clear and understood about conversion, diversion? Is any doubt in that? Now here the next question, the ray consisting the beam actually the meet at the points or appears to the meet at the points, then the beam is, क्या कहोगे बोलो, आपको पता है आंसर्स, सोच एक ही क्या है, जस्ट रेज योर हैंड्स, हाथ खड़े करो, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को, who will me first do explain the question first। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसका मतलब आधा आंसर आ गया है। Who will explain the question? Yes, explain the question. Very good. Very good. Nice. You understood the question. If the rays consistence the beam actually meet at a point or appears to meet at a point, then a beam is। क्या हो रहा है, appear हो रहा है, मिल रहा है, एक पॉइंट में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कॉन्वर्ज है ना, एक पॉइंट में मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कॉन्वर्ज। तो आंसर क्या आएगा इसका बी, कॉन्वर्ज। द नेक्स्ट वन, हियर गिवन द व्हाट हैपन व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। तो जब लाइट इंसिडेंट सरफेस पे आता है तो उसमें क्या है, एब्सॉर्प्शन भी होगा, हमेशा की नहीं, लाइट ट्रांसफर होगा ऐसा नहीं है, यहाँ पे दिखा है कंडीशंस, द इंसिडेंट रेज, ऑल द रेज आर कमिंग एंड सम लाइट्स इज गोइंग बैक, that is bouncing back, is known as the reflected। लाइट पीछे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, बाउंसिंग बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। सभी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, यहाँ पर सभी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, सम लाइट विल बी एब्जॉर्ब इन मीडियम, वही मीडियम में कुछ लाइन क्या हो रहा है तुम्हारा, समा जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। एब्जॉर्ब का मतलब समझ में आ रहा है, कुछ वो मीडियम के अंदर ही समा जा रहा है, उसको बोला है एब्सॉर्प्शन। ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है फिर, और कुछ लाइट यहां से तुम्हारा
निकल जा रहा है, एक्चुअली यहाँ पर आएगा कंडीशन, बेंडिंग दैट, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा रास्ता आ रहा है लाइट का और यहाँ पे पाथ चेंज हो रहा है, ये कंडीशन है रिफ्रैक्शन की। ये कौन सी है? रिफ्रैक्शन, एंड दिस इज नोन एज द ट्रांसमिटिंग और आल्सो नोन एज द इमर्जेंस। निकल जाना है, निकल जाना है क्या है? ट्रांसमिट होना, इमर्जेंट होना, निकल जाना। समझ में आ गया? इसका मतलब लाइट क्या है तुम्हारा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ लाइट ट्रांसमिट होगा। गॉट इट? लाइट आता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। एक्चुअली प्रैक्टिकली फिर देखा जाएगा तो 100% ट्रांसपेरेंट मीडियम है ही नहीं। लाइक वी आर सेइंग द मिरर आल्सो, है ना, मिरर भी 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करता है, बाकी का रिफ्लेक्ट करता है। द सेम वे हियर द गिवन द रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस। ओके, रिफ्रैक्शंस का मतलब क्या है तुम्हारा, यहाँ पे बेंडिंग, चेंजिंग द पाथ। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो क्या कर रहा है, लाइट पाथ चेंज कर रहा है। पाथ का मतलब क्या है? रास्ता, उसका रास्ता जो है। यहाँ पे देखिए वही रास्ते में क्या क्या, राइट वही रास्ते से क्या क्या नहीं, क्यों नहीं गया? मीडियम आया दूसरा, है ना। आप सेम स्पीड में ट्रेवल करते हैं हमेशा, ट्रैफिक होगी तो क्या करोगे आप? स्पीड कम करोगे। तो लाइट भी वैसा ही करता है, लाइट को भी समझ में आता है यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है, स्पीड अपने को कम करना है, तो यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड कम, फिर रोड स्मूथ है फिर स्पीड बढ़ाया। मीडियम चेंज होते ही लाइट की स्पीड भी क्या होगी? चेंज। जब लाइट की स्पीड चेंज होगी वही कंडीशन में क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? रिफ्रैक्शन। एंड द लाइट इज बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम, वही मीडियम है, यहां पे एयर है, यहां पे भी जा रहा है और टकरा के फिर से आ रहा है, उसे क्या कहोगे आप? रिफ्लेक्शंस। तो उसके कुछ लॉज है, we'll discuss the laws also. Here the reflections of the lights, why we are able to see the objects, why we are able to see the colors, any idea? आपको कलर्स दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? यस, करेक्ट है, कुछ कोई तो बोल रहा है, बताइए, बराबर है। वेरी गुड, इट्स बाउंस, द कलर्स आर द सेंसिंग टू आवर रेटिना एंड द रेटिना आवर सेंस द कलर्स, है ना। कलर्स आप ये ऑब्जेक्ट के कलर दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये कलर आपके आंखों में रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना पे जा रहा है, जब आपको सेंस हो रहा है कि यहाँ पे कलर्स है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। मैंने पहले ही बताया आपको, हर लाइट आपने को दिखता नहीं है, कुछ लाइट्स की वेवलेंथ दिखती है, कुछ लाइट्स की वेवलेंथ अपने को नहीं दिखती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इज नथिंग बट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। वही मीडियम में लाइट आ रहा है, सेम मीडियम में आ रहा है, तो उसे बोला है अपने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Here we'll find some laws of reflections. Here you can find the mirror, plane mirror, or the transparent, the objects we can see, the boys are able to see that his image in the plate, shining plate, the polished surface. For reflections, what we required for reflections, the basic quantities require the polished surface. Polish होगा तो ही रिफ्लेक्ट होगा, बराबर है। ये बर्तन साफ नहीं होता तो रिफ्लेक्ट होता था? नहीं होता था। तो रिफ्लेक्ट, मिरर कैसा होता है तुम्हारा? पॉलिश सरफेस होता है, वन साइड इट विल बी सिल्वर कोटिंग पॉलिश, देन ओनली वी आर एबल टू सी द आवर इमेज। व्हाट आर द कंडीशंस? इट विल बी द पॉलिश सरफेस ऑन वन साइड, हियर वी आर एबल टू सी द मिरर, द and here we can see that the still water, steady water is actually, water is a transparent also, as well as it will be reflecting the light also, depending upon the background, which background downstream is there. Okay, the glass, if suppose if you are finding the glass, now at present if the glass is very transparent, if suppose if you are keeping the black paper behind the glass, then we are able to see your face. Why? Because the black is again reflecting the lights, depending upon the what is the backside. Because of that, in our we are finding the glass is actually totally transparent. But how we are able to make the mirror? At the glass we are painting the polished surface, silver polish, and silver is a good reflector. Okay, here they are finding the polished surface, they are good reflectors here. The water is also good reflector here, and with the help of reflectors we are, which kind of image we are able to see? In the plane mirror we are able to see the always virtual image. जो इमेज आपको सीधी दिखती है, सीधी का मतलब क्या है? As it is, that all the images are virtual. इमेज वर्चुअल भी होती है, कैसी होती है? वर्चुअल का मतलब क्या है? रियल इमेज कैसी होती है?
What is the real image? ओके, कैप्चर ऑन द स्क्रीन। तो चलो ये तुम किताब की भाषा होगी। जनरल बात की, रियल इमेज का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज का, इमेजिनरी वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? यू कैन टच द इमेज, वर्चुअल इमेज। आप वर्चुअल इमेज को टच कर सकते हो क्या? मिरर के सामने आप खड़े हो गए, आप आपके नाक को टच कर सकते हो, आपके आंखों को टच कर सकते हो, कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? हाँ, नहीं कर सकते हो। क्या होगा? आप मिरर के पास जाओगे, नाक टच करने जाओगे, आपका आपकी उंगली उंगली को टच हो जाएगी, नाक टच होगी, नाक से नाक टच कर सकते हो लेकिन उंगली से नाक, दैट इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। द इमेज फाइंड बिहाइंड द स्क्रीन इज नोन एज द, बट अभी मैंने क्या पता आपको, समझो सर यहां पे मुझे आर को टच करके बताओ, तो अब आओगे आर को टच करोगे, वी कैन टच द ऑब्जेक्ट, बराबर है, मैं आर को टच करा यहां पर, ई को टच कर लिया है ना, we can touch the object, that kind of the image, or we can in simple way the image obtained on the screen is known as the real image। वो भी देखेंगे अपन धीरे धीरे। तो यहाँ पे types of reflections, the laws of reflections in the mirror, some properties are there। I will elaborate all the properties, I will explain that the properties of mirror। Let me consider the given, this is the surface, the polished surface are there, this is known as the reflector। क्या कहोगे इसे? वो क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसे क्या हो गया? रिफ्लेक्टर। आई विल ड्रॉ द फिगर हियर सेम वे। दिस इज अ रिफ्लेक्टर, ये सरफेस है, यहां पे क्या कर रहे हैं आप? ये सिल्वर कोटिंग, लेट वी अज्यूम दिस इज सिल्वर कोटिंग, यहां पे नाम दो मिरर दो या तो फिर रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर रहने का लाइट को क्या करेगा? वो बाउंस करेगा। ओके, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइट कहां पे आ रहा है, उसे क्या कहोगे आप? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे इंसिडेंस क्या है? पहले इंसिडेंस इज नथिंग सॉरी, द रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स। सोर्स कौन सा है? आपने देखिए सोर्स यानी क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द रे इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज द इंसिडेंट रे। सपोज यहां पे सन है, लेट मी एज्यूम सन, स्टार, कुछ भी लो, है ना, तो यहां से रेज आ रही है, सपोज द रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज नोन एज द इंसिडेंट रे। आके कहां लगी? वहां पर आपके मिरर पे। कौन से पॉइंट पे लगी? इसे क्या कहोगे आप? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहा क्या कहोगे? पॉइंट इंसिडेंस ने कहां लग रही है? ये पॉइंट पे लग रही है, करेक्ट है। तो ये पॉइंट को क्या कहोगे आप? यहाँ पे पॉइंट ऑफ, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है आपको फिगर में? पॉइंट बी। पॉइंट बी इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे क्या करता हूं मैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में से एक परपेंडिकुलर निकालता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, 90 डिग्री। वेरी गुड। देन सपोज आई एम प्लॉटिंग हियर द 90 डिग्री फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस सरफेस को मैं परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं। परपेंडिकुलर मतलब क्या है? एंगल 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या है तुम्हारा? एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होता है देखो अभी, तो यहाँ पे दो एंगल तैयार हो गए, है ना। एक एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये नॉर्मल है आपकी, है ना, ये नॉर्मल है। ये क्या है तुम्हारा? इंसिडेंस रे। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे एक एंगल बन रहा है देखो आपका, यानी क्या होगा तुम्हारा? ये पूरा एंगल 90 है, तो क्या 90 माइनस आई, है ना। इसे क्या कहोगे आप? ग्लांसिंग एंगल। क्या कहोगे इसे? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टर इज नोन एज द ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहोगे आप? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे एक्चुअली और एक एंगल में बताना चाहता हूँ कि जो आपकी स्लाइड्स में नहीं बताया वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये क्या है? इसमें एंगल है तुम्हारा इन फिगर, सपोज एंगल ए बी एम इज ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल एन बी ए इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द सेम वे इफ द लाइट इज कमिंग ऑन द सरफेस एंड फ्रॉम हियर द लाइट इज अगेन बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम। लाइट आ रहा है, फिर से वही मीडियम में जा रहा है, रुक रहा है क्या? वो नहीं, जब जा रहा है, जब वो रेज को क्या कहोगे आप? रिफ्लेक्टेड रेज। क्या कहोगे उसे? those rays bouncing from the incident surface, the point of incidence, that ray is known as the refracted ray। यहाँ पे दिया है देखो, क्या बता? the refracted ray। the angle made by the incident ray, sorry, the normal and refracted ray is known as the angle of refractions, the angle of
रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी सेम है, देखो तो यहाँ पे भी क्या है लॉस के हिसाब से, तो फिर से ये एंगल बन रहा है आपका कौन सा, यहाँ पे भी एक एंगल, ये भी क्या है तुम्हारा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आर, तो ये एंगल भी क्या होगा तुम्हारा 90 माइनस आर। ओके, तो ये भी ग्लासिंग एंगल है, ये कौन सा है, ये साइड इंसिडेंस का तरफ का साइड है, ये साइड कौन सा है तुम्हारा, सेम वे द ग्लासिंग एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस। गॉट इट? कितने एंगल पता हुआ है आपको, चार। कौन से पता हुआ है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ग्लांसिंग, ओके, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड आल्सो हियर एंगल ऑफ ग्लांसिंग फॉर रिफ्लेक्शंस। तो यहाँ पे और तुम्हारा रिलेशन समझ में आ गया। द लॉस बताऊंगा मैं आपको बाद में, तो उसमें क्या लॉस क्या है, तो उसमें क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रिलेशन बताऊंगा मैं, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आएगा। और क्या रिलेशन है एंगल ऑफ ग्लांसिंग फ्रॉम द इंसिडेंस एंड फ्रॉम द रिफ्लेक्शन, दैट वन आल्सो विल डिस्कस हियर। रे समझ में आ गए, 4 types of angle. Again one angle is there, here we can say for that the angle of deviation, क्या कहोगे उसे, angle of deviation. So actually if suppose we can consider this incident ray if suppose extended, ऐसी जा रही थी रे, जा रही थी ना, पर क्या हो गया because of that reflectors the ray is bending here, तो रे क्या हो रही है, बेंड हो गई। तो ये एंगल जो है आपका, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया, ये एंगल क्या बोलोगे आप, एंगल ऑफ, लेट मी कंसीडर दिस इज सपोज द इंसिडेंट रे मूविंग हियर एंड वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दैट रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। कौन सा रे है, द एंगल बिटवीन, ये इंसिडेंट रे आ रही है ना, इज इंसिडेंट रे एंड refracted ray, we can find the angle between the incident ray and refracted ray is known as the angle of deviation. Is it clear now? How many angle we introduced now? 5. Okay, now who will explain me one by one what is the angle of incidence? कौन बताएगा मुझे what angle of incidence क्या है, anyone fast, we not having much time, जल्दी बस, what is the angle of incidence? Yes, very good. The angle between the incident ray and normal is known as the angle of incidence. Very simple. इंसिडेंट रे क्या है, ये तो दोनों के बीच का एंगल, उसको क्या बोलना है आपको, एंगल ऑफ, सेम वे व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, वेरी गुड, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द ग्लांसिंग एंगल द एंगल मेड बाय दैट द रिफ्लेक्टर्स एंड द इंसिडेंट रे, और एंगल रिफ्लेक्टर्स एंड द रिफ्लेक्टेड रे। अभी इसमें लॉस के बारे में देखना है अपने को, तो लॉस में क्या बताया उसने, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज सेम। तो हमेशा आपका एंगल आई और एंगल आर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। तो आई और आर सेम होगा, तो इसका मतलब 90 माइनस आई और 90 माइनस आर भी सेम होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ग्लांसिंग एंगल फ्रॉम द इंसिडेंस एज वेल एज ग्लांसिंग एंगल रिफ्लेक्टेड भी आल्सो सेम। समझ में आया क्वेश्चन? अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, मैं अभी आपको समझ में आ गया, ये समझ में आया क्या? नाउ लेट मी कंसीडर, ओके, और वी कैन डू अनडू, मेरे को इतना ही कट करना था, अरे चलो कोई बात नहीं। तो ये फिगर में हो रहा है, शायद कट हो रहा है, देखिए, माय क्वेश्चन फॉर यू, if suppose this is the incident ray, reflectors, okay, in that reflector suppose angle I equals to 40 degree, then what is the angle of R? Stand up. 40. What is the angle of the glancing, what is the glancing angle in the figure? Good. What is the glancing angle? Yes, yes, good. 90 minus 40 means 50. Very good. This I is given 40, then definitely R is also 40. Then what is the glancing angle? 90 minus 40, that is 50. This is also 50. Understood that one relation? Okay. And if suppose if you have to find the angle of deviation,
what is the angle of deviation? The angle between incident ray and refracted ray. आने वाली रे कौन सी है? देखिए ये क्या है तुम्हारी इंसिडेंट रे, इसी दी जाएगी. ओके, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ये इसी जा रही. तो एंगल ऑफ डिविजन क्या बन गया तुम्हारा? ये नहीं, ये सप्लीमेंट्री हो गया ना. ये क्या हो गया तुम्हारा? सप्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आता है? क्या होता है सप्लीमेंट्री? ओके, कॉम्प्लीमेंट्री. सम ऑफ द एंगल्स आर 90, सम ऑफ द एंगल इज 180 मींस नोन एज. ओके, तो यहां पे देखिए, तो ये एंगल कितना हो गया आपका? अभी ये यहां से लेके यहां तक ए लाइन, तो ये एंगल कितना हो गया आपका? 180. तो इसमें से देखिए ये 40 है, ये भी 40 है, तो ये कितना है पूरा? 180. 180 में से 80 गए, 40 और 40 कितना गया? तो ये एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा आपका? 100. अंडरस्टूड? एंगल ऑफ डेविएशन अंडरस्टूड? मैं अभी फिर से क्वेश्चन पूछूंगा आपको, एक एंगल बताऊंगा मैं आपको बाकी के 3 एंगल बताना है. इज इट क्लियर? नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन. नाउ जस्ट find the angle of incidence from same kind of the question is there. You have to find, question रखता हूं मैं पहले, angle of I you have to find, angle of deviation also you have to find, and glancing angle also you have to find. Okay, glancing angle of incidence or whatever the angle you have to find. I am just giving the figure. Now who will find first? I कितना आएगा बोलो फर्स्ट? वेरी गुड. देन glancing angle, correct. Then deviation, correct. देखिए क्या है? 30, ये कितना हो गया आपका? 60. एक्सटेंड करो, 180 में से ये एंगल 60 माइनस करना है सिर्फ, तो ये एंगल कितना हो गया आपका? 60 + 60. वेरी गुड, अंडरस्टूड. Let me proceed now. Here the given the special type of the reflections here given, the regular reflections and irregular or diffuse. If all the incident rays are coming parallel and the going also back, they are with the same way, they are also going parallel, is known as the regular or specular refractions, and they are going to scatter. They are not giving with the same way. All the incident rays are coming here, but the surface is not uneven here, and while refracting, the rays are going randomly somewhere. They are known as the irregular type of reflections or diffuse refractions. Understood? In both the case, laws are obeyed. In all the cases, if you say, sir, here the laws will obey, but what about this? In all the cases, law means law. It will be valid for everywhere. Okay. And now here, the next slides, we will discuss about that the same. The reflections from the surface of water. Here, given that mountain, like this, if we can find this here, the refraction. We can find the able to image. Okay. Here also we can find the image. Here we can find the mostly clear image. Yes. Because the stable water is there. Means we can see this is a regular one. Here we are unable to see, some waves are there in water. Because of the waves, we are unable to see clear image. That is known as the diffuse refractions. From the figure, we can identify which one will be the clear one, which will be the diffuse. आप आईने के सामने खड़े होते हो, तो वो कौन सा रिफ्लेक्शन है आपका? रेगुलर वन. अभी वही आईने को क्या करो, थोड़ा पत्थर से मार दो, फिर सामने खड़े रहो, चेहरा दिखेगा आपको. वो क्या होगा तुम्हारा? इरेगुलर और डिफ्यूज. इज इट क्लियर नाउ विच काइंड ऑफ रिफ्लेक्शंस? रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इंसिडेंट रे भी पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल. वी आर एबल टू सी द क्लियर इमेज इन शॉर्ट. डिफ्यूज में देख सक रहे इमेज आपकी पूरी. वी कांट सी द क्लियर इमेज इन डिफ्यूज रिफ्रैक्शंस. हियर द नेक्स्ट वन, द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस. मैं बता रहा था आपको लॉज के बारे में. सिंपल 3 प्रॉपर्टीज है. टाइम अप. ओके. The laws of reflections. The first one, the angle of incidence equals to angle of the incident ray, reflected ray, and normal all are in a same plane. एक ही प्लेन में है. प्लेन है उड़ने वाला नहीं. प्लेन उड़ने वाला होता है. सरफेस, same surface, and the incident ray and reflected ray are opposite side of the normal.
नॉर्मल के अपोजिट साइड होता है. यहाँ पे देखिए फिगर, जस्ट मिनट, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सेम है. द फर्स्ट लॉ क्लियर. द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन में है. प्लेन का मतलब क्या है, सरफेस, नॉट दैट प्लेन. ओके, एक ही सरफेस में है. थर्ड वन, दे आर अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. नॉर्मल यहाँ पे, नॉर्मल का एक राइट साइड में, दूसरा लेफ्ट साइड में है, अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. लॉज याद हो गए? कौन बोलेगा लॉस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ incident ray, refracted ray and normal all are in a, and the incident ray and refracted ray are opposite side of the normal. Okay, these are the laws that will be obey in all the types of the mirror, in a plane mirror also, in a concave as well as in a convex, regular as well as irregular or diffuse. The laws obeys everywhere. Okay, these are the laws. And here the some summary reflections of light. We discuss about the same laws. We have to discuss about the same. The angle of incidence, reflected and normal are the same plane. Here some questions, homework for you. Define the terms angle of incidence. The angle between the incident ray and normal is known as angle of incidence. The angle of reflections you know very well, and the plane of incidence. The same way you have to define. Say the laws of reflection. The same thing you have to repeat again. Okay, the types of reflection, you can just go through from the questions and you can find the answer. If you are unable to find the answers, we'll discuss anytime. Okay, just go through from the sites. We'll continue in a next period. Thank you.